ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସେଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଅଧାର୍ମିକ କଇନ, ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ କଇନ ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ ହେବଲଙ୍କୁ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ହେବଲଙ୍କୁ ବଧ କଲା, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ନିବୃତ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ସିଡ୍ ଅଫ୍ ସିନ୍, ତାହାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଗଲା। କଇନ ଗଲେ ନଦ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ, ତହିଁରେ ତାହାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହେବଲଙ୍କର ବା ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ ମାନେ, ଧାର୍ମିକତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦମଙ୍କ କୋଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଦିଆଗଲା ସେଥ, ସେଥ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆପଏଣ୍ଟେଡ, ପ୍ରତିନିଧି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଏ ଦ୍ୱାରା ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସହବାସ କରନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ସେଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଅଟେ ସେଥ ନାମର ଅର୍ଥ? କଣ ଅଟେ? ଆପଏଣ୍ଟେଡ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଧାର୍ମିକତାର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ କଇନ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରାଗଲା, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଗଲା, ସ୍ଥାନଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଏଣ୍ଟିଂ କରାଗଲା, ଆପଏଣ୍ଟେଡ କରାଗଲା। ବେଳେ ବେଳେ ବାଳକମାନେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତହିଁରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ପଠାଯାଏ, ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଏଣ୍ଟେଡ। ତାମାନେ କଇନ ହେବଲ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତୀକ, ପାପାତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ, ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ। ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା, ଧାର୍ମିକତାକୁ ବିନାଶ କରାଗଲା, ଏମିତି ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ହେବଲଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ସେଥଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି କରି ପଠାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ହେବଲର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେଥଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ପଦରେ, ଦୁଇ ଗୋଟି ପଦରେ ସେଥଙ୍କ ଜୀବନ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଥଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଲେଖାଯାଏ। ସେଥଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପରିଚୟ, ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଏହା ଅଟେ, ହି ଇଜ୍ ଏ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ୱାନ୍। ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେମିତି ସେଥଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଆମ୍ଭକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ଶୂନ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆହୁରି ବଢିପାରିବା, ନହେଲେ ମନ୍ଦତା ବଢିବ। ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟ, ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାର୍ଟ। ସେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିହନ ଦେଖାଗଲା, ଦୁଇଟି ବୀଜ ପଡିଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଲ ବିହନ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆମେ
गोटे पाठ जो द्वारा आम्भे माने प्रभु ठारे बढ़ी पारिबा पापात्मार विषय गुड़ी को नष्ट करि पारिबा सेही स्थान को सबु बेले पूर्ण करि रखिबा दरकार। कोई नहेले आमर पुरातन जीवन प्रतीक से तो अच्छी कहीं से कोई न तो मरी नहीं। आमर पुराना स्वभाव बेले बेले आम ठारे थाए किंतु नुआ स्वभाव को रिप्लेस करो। तेणुक बाइबल रे लिखा जाए एफिसियर 4 अध्याय लिखा अछि। एफिसियर 4 अध्याय 22-24 रे लिखा जाए कहले पाउल कहले जे तुम्भर पुरातन विषय को हटाओ नुआ विषय को रिप्लेस करो। नूतन स्वभाव को पुरातन स्वभाव को लोप करो नूतन स्वभाव को तहिरे स्थापन करो जहाँकि ईश्वर प्रतिमूर्ति धार्मिकता सत्यर पवित्रता निर्मित होइथिबा नुआ स्वभाव को पुनर्बार कौन करो स्थापन करो। तेबे जीशु थरे दृष्टांत दौथंती और से दृष्टांत दौथुवा समय मध्य गोटे कथा कहिले गोटे मनुष्य ठारू जेतेबेले मंद आत्मा बाहरी पड़े कोइन को आमे पलातक करिदेलु कोइन कहार प्रति गोटे मंदार बाबा ताहाको आमे बाहर करिदेलु किंतु किछि विषय रिप्लेस होलो नाही कोन हबो से कोइन आउथरे रिटर्न हो। जण पर माथ्यू 12 अध्याय 43 रु 45 रे लिखा जाय जेतेबेले गोटे मंद आत्मा जड़े व्यक्ति ठारू बाहरे से निर्जन स्थान गुड़ाक भ्रमण करे जलशून्य स्थान वृक्ष इत्यादि रे आपना निमंते स्थान खोजिबा आरंभ करे जदि न पाए से आउ थरे बाहुरी के आसीबो सेही व्यक्ति ठारे जे व्यक्ति ठारू से बाहरी थिला और जतेबेले से बाहुरी आसीबो और से व्यक्ति को जदि शून्य देखिला तबे कोन करिवो आउ थरे 7 गोटी कोइनर संतान मान को धरिके आसीबो आउ से भितरे भर्ती करिवो। तेणुक रिप्लेसमेंट निहाती दरकार। जदि परमेश्वर हेबलंगर स्थान को शून्य छाड़ी थांते धार्मिक जीवन बढ़ी न थांता लोके प्रभु को बुझी पारि न थांते चिन्ही पारि न थांते। एणुक आमे गोटे जीवन को छाड़िलु गोटे स्वभाव को छाड़िलु शारीरिक स्वभाव को पापर स्वभाव को दुर्बुद्धिर आत्मा गुड़ाकर जो स्वभाव गुड़ाक थिला हैबिट गुड़ाक थिला आम ठारे से सब को छाड़िला परे एबे नुआटा से भितर भर्ती कर नुआ कौन भर्ती करि परिबे कौन भर्ती करि परिबे एमिति विषय भर्ती करो जहा हेबलंकर जीवन को देखाउ। हेबल कौन अटे अटंती धार्मिक प्रतीक सेथ प्रतिनिधि हेले अर्थात जहा धार्मिकतार प्रतीक जहा प्रभुंकर साक्ष्य बहन करे एक प्रकार विषय को जीवन मध्य स्थान दिए। प्रथम विषय कौन अटे रिप्लेस सेथ रिप्लेसमेंट सेथ। नंबर 2 जे परमेश्वर सेथ को जगत रे पठाइबा परे आ गोटे विषय है जे धार्मिक जीवन नूतन आरंभ है। पूर्वे कईनर वंशर लोक माने थिले किंतु धार्मिकतार लोक माने नथिले। न्यू बिगिनिंग ऑफ राइचियस लाइफ प्रथमे कौन है रिप्लेस आपण जे पर्यंत रिप्लेस करा जिबे नाही गोटे स्थान रे प्रभुकर विषय को अपॉइंटेड करिवे नाही राइचियस लाइफ आरंभ हेबो नाही। तेणुक नुआ जीवन को आरंभ करने
प्रथम रिप्लेसमेंट दरकार एणु लिखा जाए बाइबल जदि पढ़े रोमियो 12 अध्याय 1-2 पदरे साधु पाउल से कथा कहते अपना शरीर को सजीव पवित्र कर अर्थात यू हैव टू रिप्लेस योर फिजिकल पार्ट इनटू स्पिरिचुअल पार्ट तेबे साई you would be transformed yourself spiritually newly निज ट्रांसफॉर्म करी मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तन तेबे प्रिय प्रभु को दासी माने शेखर जन्म पर जगत मध्य गोटे भरोसा आसिला जे शयतानर राज्य विरुद्ध में मध्य प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ମଲା ପରେ ଭାବୁଥିବେ ଆରେ ଆରେ ଶୈତାନ ତ ଜୟୀ ହେଇଗଲା ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିବ ଆମେ ତ ଜିତି ଗଲୁ କୈନକୁ ଖାଲି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ସିନା କରାଗଲା ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ କ'ଣ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା କି ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲା ତାହାର ଲୋକମାନେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହାର ଦଳ ବଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ताहंकर आइडेंटिटी को डिवाइन आइडेंटिटी को सेठों जरिया रे आउट द रिस्टार्ट कले बिगिनिंग रिप्लेस रिस्टार्ट एहा हला तृतीय विषय कोन अटे आमे जहा बहिरे पढिलो इंग्रजी बाइबल टा बढ़िया भाबरे लिखा जाय हेबलंकर प्रतिनिधि स्वरूपे बोली ओडिया रे लिखा जाय seed of Abel seed माने हेबलंकर वंश को रिन्यू खोड़ा गला रिजरेक्शन ऑफ dead seed गोटे मृत बीज आउ थरे जीवित हेबा आरंभ गला से समय मो कथा बुझा पड़ुसी दिनेश किसी प्रॉब्लम अछि कि तुमको ओके एनीवे गोटे मृत बीज हेबलंकर बीज संपूर्ण भाव में मृत अवस्था थिला सही बीज आउ थरे रिजरेक्टेड हेबा आरंभ कला गोटे मृत जीवन को प्रभु आउ थरे पुनः संस्थापन कले अर्थात सेथ इज ए सिंबल ऑफ रिजरेक्शन से जने पुनरुत्थान प्रतिनिधि होती तहिर एक भरोसा दियागला धार्मिक लोक को मारिले मध्य धार्मिक लोक पड़ी गले मध्य आउ थरे से उठिबो एहा हला सेथर प्रतीक काहेकि बाइबल रे लिखा जाय जदि पढिबे गलाती 5 अध्याय टिके शीघ्र बाहर करी पढि देखंतु 5 16-17 पद रे कोन लिखा अछि मंगल भाव देही आत्मा को द्वारा आचरण करो ताहा हेले तुम माने शरीर अभिलाष पूर्ण करिबो नाही कारण शरीर अभिलाष आत्मा को प्रतिकूल और आत्मा को अभिलाष शरीर को प्रतिकूल जेणु एही दुई परस्पर विपरीत फलत तुम माने जहा जहा इच्छा करो सेई सब करि पार नाही लिखा जाय दुई गोटी विपरीत विषय पाउल कहले आत्मा को द्वारा आचरण कले शारीरिक विषय ऊपर तुम्हें माने जयी हेबो किंतु से दिन टिके उल्टा हो जाइथिला शरीर आत्मा को ऊपर जयी हो जाइथिला किंतु सही हारी थिबा बीज जे कि मृत अवस्था रे थिला ताहाकू हेबलंको सॉरी सेठंको जरिया रे प्रभु पुनराय उठाइले ता माने एठारे विश्वासी मानक गोटे संदेश दिया जाए हेबलंकर देखंतु बाइबल रे किसी व्यक्ति अटंती दे आर नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन किंतु से माने किए अटंती दे आर द सिंबल ऑफ गॉड्स ओरेकल ईश्वरंकर वाक्यर प्रतीक अटंती दे आर ओरेकल ऑफ गॉड हिमसेल्फ से माने ईश्वरंकर वाक्य निजे बहन करंती सेमानकर व्यक्तित्व मध्यरे प्रभुकर संदेश थिला
से व्यक्ति माने निजे प्रभुंकर मेसेज थिले सेथिपाई पुरातन नियम रे आदि पुस्तक 1 अध्याय रु 11 अध्याय मध्यरे किछि किछि लोकंकर जीवन संबंध रे व्याख्या करा जाय नाही कि प्रभुंकर अनेक विषय को लिखा जाए ना कि जो व्यक्ति माने से समय रे थिले से माने निजे ईश्वर को वाक्य से माने को देखिले प्रभुंकर कोन कोन उद्देश्य थिला प्रभुंकर कोन वाक्य से जुग रे रहुतला से सब को आमे माने निरीक्षण करि परिबा समिति प्रतीक थिले सेठ तबे से गोटे मृत जीवन को मध्य आउ थरे उठाई हेबो परमेश्वरंकर साहाय्य रे सेही कथा विशेष कहले आज विश्वासी मानक निमंत्र मध्य गोटे मेसेज होते हे निद्रित जाग मृत मानक मध्य एफएसए 5:14 बेले बेले आमे मृत अवस्था रे पड़ी गला परे उठी पारुना किंतु सेथ हेबलंकर बीज को आउट रे उठाइले ए तीन गोटी परिचय नहीं सेथंकर जन्म हैला कोन कोन म कहली से अपॉइंटेड ले गोटी स्थान को पूर्ण कले द्वितीय विषय कोन होला जे से ईश्वरंकर राइचियस लाइफ को आउट रे बिगिनिंग कले रिस्टार्ट कले न्यू बिगिनिंग ऑफ राइचियस लाइफ ऑफ गॉड तृतीय कथा कोन होते जे गोटे मृत विश्वासी जने मृत जीव ताहाकु मध्य आउ थरे रिजरेक्टेड करा जाई पारिबो ए तीन गोटे संदेश नहीं सेथंकर जन्म बुझा पड़ुसे म कथा तबे एहा तो मु गोटे पदर कथा कहिली आदि पुस्तक 4 अध्याय रो 25 पदर कथा कहिली एबे आदि पुस्तक 4 अध्याय रो 26 पद रे सेथंक समय रे कोन कोन घटिला से कथा लिखा जाए देखो तो गोटे पद गोटे जुगर कथा कहूँ तेणुक पुरातन नियम जिते पढ़ुवे ना से गोटे पदर ही से जुगर सब जग विषय लिखा थी कौन लिखा अच्छी 26 पद तहु सेथर मध्य एक पुत्र जन्मिला आउ से ताहार नाम इनोस देला एई समय रे मनुष्य माने सदाप्रभु को नाम रे प्रार्थना करने को लगिले सेथक समय रे कौन घटिला जदि आपण को जीवन रे प्रभुंकर विषय को रिप्लेस आपण करि आ जदि करि ना कि बोली कोइ न पसे किंतु जदि कोले केबे हेले मु आज ठारो पूरा पवित्र हे गली सब प्रकार मंद अभ्यास मंद कहिबा मंद देखिबा सब छाड़ी देली बोली कि चुपचाप बसी पड़िली आउ थरे से मंदता बस तेणु करी जदि आपण मंद देखिबा छाड़िले माने एबे प्रभु को देखिबा स्टार्ट कर आ चुपचाप बसी देले मो तो देखबार नै मई मंदता को भी देखबी ना प्रभु को मते देखबी नै दुईटा जग मते जणा नै बोले भाबिले माने सैला बसीबाटा बस जदि आमे अजथा असार विषय गुडी को सुनिबा बंद करि देलु तेबे प्रभु को सुनिबाटा स्टार्ट करि किछि विषय को जदि शून्य कलु कोइन को जदि आमे शून्य कलु से जगह रे रिप्लेसमेंट हेबा निहाती जरूरी होते नहले आदम मनुष्य समाज धार्मिक जीवन शून्य पड़े जीव काहे से तो पलातक समय समय आसीबो हेबन परि लोक माने ठिया हेले ता से मानकु ताड़ना करबा पाई बोली आसीबो से किंतु आदम को घरे केबे रही परिबो नै से मंडली मध्यरे केबे रही परिबो नै मंडली जदि शून्य हे जीव प्रभु को लोक माने जदि शून्य हे जीव तो हेरे पूर्ण करबा निहाती जरूरी होते आ जदि आपण रिप्लेस करा बोले आपण को उठाइले एई बारे हम मृत अवस्था रे थिलो एई बारे आमान गोटे कोन से प्रकार धार्मिकता रो बीज नथिला एबे आउ थरे आमे जते बेले प्रभु को द्वारा रिजरेक्टेड हेलो जते जण विश्वासी माने those who are baptized in the name of Christ they are resurrected people तेनो करी बाइबल रे लिखा जाय रोमियो तहिरो 4 अध्याय 6 अध्याय तहिरो 3-4 रे लिखा जाय जते जण
प्रभुଙ୍କ नामରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିଲୁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଉଠି ଅଛୁ ଆମ ଜୀବନ ଦେଇ କଣ ହେବା ଦରକାର? ସେଥ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ହେବଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ଘଟିଲା? 3-4 ଗୋଟି କଥା କହିବି। ନମ୍ବର 1 ରେଷ୍ଟୋରେସନ, ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। କଣ ଲେଖାଯାଏ? ରେଷ୍ଟୋରେସନ। ରୋମିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ କୋଉଟା ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ତାମାନେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛୁ। ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇ ସାରିଅଛୁ। ଆମେ এই ଜନ୍ମଗତ ପାପରୁ ମୃତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲୁ ଆମ୍ଭକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସେଥ କଣ କଲେ? ହେବଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହେଲେ। ହେବଲଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ବୀଜ ଯେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେ ମୃତ ବୀଜ ଆଉ ଥରେ ସେଥଙ୍କ ଦେଇ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ କଣ ଘଟିଲା? ନମ୍ବର 1 ରେଷ୍ଟୋରେସନ କରାଗଲା। କେବଳ ଯେ ସେଥ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇ ନାହିଁ। ଇନୋସ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ। ସେଥଙ୍କର ଗର୍ଭରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଇନୋସ। ତାମାନେ ଏବେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ହେବାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁକରି ବାଇବଲରେ ହିଜିକେଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 36 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟକୁ କାଢି ନେଇ ମାଂସମୟ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। That is the message of restoration. ତାହା ରେଷ୍ଟୋରେସନର ଏକ ସନ୍ଦେଶ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେଷ୍ଟୋରେସନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ପାଇବା ହେଲା ରେଷ୍ଟୋରେସନ। ଆଉ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ନଟ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଦମ ହବାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସିନା ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥର ଗର୍ଭରେ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ। ଇନୋସ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କାହିଁକି? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ସେ ଫଲୋ କଲେ। ତେଣୁକରି ଜୀବନରେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫକୁ ବିଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବନାଉଛନ୍ତି, ଗଢୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ୱେକୁ କେବେ ହେଲେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫିଜିକାଲ ୱେ କଣ ହେଇଥିବ? ଅମୁକ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଆମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦଉ ସବୁ ଯାକ ଚେଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ସେଟା ହେଲା ଫିଜିକାଲ ୱେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେ ହେଉଛି ପ୍ରେୟର, ଫାଷ୍ଟିଂ, ମେଡିଟେସନ। ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ବିଷୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଦେଖାଯିବ। Restoration brings transformation in a believer.
रेस्टोरेशन ही जन विश्वासी ठारे ट्रांसफॉर्मेशन आनी पारे। ओके तेबे आजिर विश्वासी विश्वासिनी माने केउ ठारे आपना को रेस्टोर करि पारिबे जीसु को ठारे को जगत रे बुलुथुबा पालक मान को ठारे नाही सेवा करू मनुष्य मान को ठारे नाही ओनली इन क्राइस्ट। तेणु करी द्वितीय करंती तहिर 5 अध्याय 17 पद जनाशुना वाक्य अछि जदि केही ख्रीष्टन को ठारे अछि तेबे से नुआ सृष्टि होई अछि ताहाकु कह जाय रेस्टोरेशन और जे रेस्टोरेशन करा गला से ट्रांसफॉर्मेशन जदि केही ख्रीष्टन को ठारे आसीला तेबे से ट्रांसफॉर्मेशन लो नुआ सृष्टि हेबो तामाने सेठंको समय कोन घटिला आउ थरे आरंभ होला धार्मिक जीवन पुनः स्थापना करगला। द्वितीय विषय कोन करगला ईश्वरकर धार्मिकतार योजना को कंटिन्यू करगला कंटिन्यूइंग गॉड्स प्लान इन राइचियस लाइफ। ईश्वरकर धार्मिक योजना गुड़ी जो माने रिप्लेस करा गले शयतान निजर प्लान को स्प्रेड करबा पाए प्रोक्लेम करबा पाए कोई लोक बाछिला परमेश्वर हेबल को बाछिला हेबल बध करा गले तापरे तांको जगह रे सेथ आसिले एबे सही सेथ सही परमेश्वरंकर धार्मिकतार योजना प्लान ऑफ राइचियसनेस को धरी की कंटिन्यू करिबा आरंभ करले। आपण जदि प्रभु को वास्तव रे पाइछथि प्रभुଙ୍କର विषय को कंटिन्यू करिबा निहाती जरूरी। हमरो ख्रिस्टियन जीवन कंटिन्यू हेबा दरकार पवित्रता रे हो धार्मिकता रे हो विश्वास रे हो आमे माने कंटिन्यू करिबा निहाती जरूरी। पुरातन विषय को छाड़ी दियो जिसाय पुस्तक रे परमेश्वर स्वयं कहले जिसाय तहिर 43 अध्याय 18 19 पद रे लिखा अछि 43 18 19 जिसाय रे लिखा जाय आद्य विषय को अनुसरण करिवो नाही देखो आम्भे एक नूतन कार्य करियो नै जाउछ तुमर पुरातन विषय को अनुसरण करासिबो नाही। तेणु करी जीवन रे जेते मध्य आपण परेशानी रे पड़ी जाइछथि भांगी पड़िछथि आपणकर उपाय किछि दुष्ट नाही सेते बेल को गोटिए विषय मन रखिबा दरकार वी आर अंडर द गॉड्स प्लान। ए कथा को ऑलवेज रिमेंबर वी आर अंडर गॉड्स प्लान। हमें सब बेले मने पकाइबा दरकार मो परमेश्वर योजना रो अधीन रे अछि। हम परमेश्वर के योजना के अधीन में अगर जीते हैं तो एक बात हमको समझना चाहिए कि अगर हम गिर गए अगर हमको तोड़ दिया गया हमको भगा दिया गया कोई सहारा नहीं है कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कोई भविष्य नहीं दिख रहा है ऐसे सिचुएशन में भी प्रभु हमको लाके उनके लिए व्यवहार कर सकते हैं है ना। मूसा जब एक मर्डरर बन गए एक व्यक्ति को मार दिए मिस्र से भागे मिडियन तक भाग गए वहां रहे 40 साल तक रहे परमेश्वर ने उनको फिर से मिडियन से बुलाए अपने लोगों को उद्धार के लिए व्यवहार किए। वो तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि मुझे मेरे जरिए और कोई काम नहीं हो सकता मेरा काम तो सिर्फ भेड़ बकरियों को चराना है यही काम करना है लेकिन परमेश्वर ने उनको उठा दिलाया। ऐसे एक व्यक्ति यूनुस है ना वो भी एक समय ऐसा आया कि समंदर में कूद पड़े परमेश्वर ने समंदर में से उसको निकाल के लाए और अपने लिए व्यवहार किए भेजे उनको नीनवी के नगर में जाओ और मेरे वचन को प्रचार करो। जब हम सोचते हैं कि हमारे जरिए कुछ नहीं हो सकता ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर का योजना अगर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमको व्यवहार करेंगे ही करेंगे। और एक व्यक्ति पाउल को भी पौल वो भी एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि
मसीही लोगों को मार पीटते थे, जेल में रखते थे, लेकिन प्रभु का योजना उनके जीवन में कुछ ऐसा था, इसीलिए उनको भी उठा लाए, उन लोगों के बीचों में से ले आए, अपने लिए व्यवहार किया, अपने प्रचार इवेंजलिज्म के लिए व्यवहार किया। अब्राहम भी वैसे ही थे। अगर जोशुआ उसका 24 अध्याय का 2 वचन अगर हम पढ़े तो वहां अब्राहम के आदि जीवन के विषय में लिखा हुआ। वो अब्राहम कौन थे? वो अब्राहम देव पूजा करने वाले एक व्यक्ति, ऐसे परिवार में से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर का योजना उनके संग था, उनको उसमें से निकल लाए, खींच लाए और अपने लिए जीने के लिए एक जगह दे दी। इसीलिए कभी भी परेशानियां हैं तो याद रखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का योजना अगर है तो हमको प्रभु कहीं ना कहीं व्यवहार करेंगे ही करेंगे। और प्रभु का योजना के अधीन जीने वाले लोगों के विरुद्ध में कोई भी ताकत आ खड़ा हो जाए, कुछ भी नहीं हो सकता, प्रभु करेंगे ही करेंगे। वो निर्बल लोगों को भी बलवान कर देंगे, है ना। तेबे एठारे से समान विषय आउ थरे करागला। शैतान भाविला कई न भाविले हेबलंकु बोध कर सेथंकु ठिया कले। एबे तांकर देई ईश्वरंकर धार्मिकतार योजना पुनर्बार कौन हला आरंभ हला। पंचम कथा तृतीय विषय कौन करागला जे सही पतित जगत मध्य विश्वास बीज बुणागला। पतित जगत फॉलन वर्ल्ड पापर बुड़ी थिबा गोटे जगत मध्य आउ थरे कौन करागला विश्वास बीज। इवे तहिरे विश्वासी माने उत्पन्न हेले लोके कौन देखा जाए एही समय रे मनुष्य माने सदा प्रभु को नाम रे प्रार्थना करने को आरंभ करले। जेतेबेले मनुष्य माने विश्वास जीवन कौन जानी पारु नथले एबे विश्वास रो बीज बुणागला। लोके एबे परमेश्वर को खोजिबा आरंभ करले। जदि आमे रिप्लेस करा जाइछु, जदि आमे रिस्टोर करा जाइछु, जदि आमे ट्रांसफॉर्म हेइछु, रिजरेक्टेड हेइछु, प्रभुकर देह रक्तरे मिसी अछु, तेबे आमर आउ गोटे कर्तव्य हाउते फाइंड द किंग, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। ईश्वर को राज्य और धार्मिकता को अन्वेषण करो। माथ्यू 6:33 अनुसार सही समय सत्य समय ईश्वर को विषय ईश्वर को राज्य को अन्वेषण करागला। लोके प्रभु को ऊपर सरेंडर हेले, प्रभु को ऊपर डिपेंडेबल होगा आरंभ कले। एवं श्रेष्ठ विषय जे एई समय ठारू नूतन विश्वासी माने आत्मांकर विश्वासी माने उत्पन्न हेले। कई नहबलक समय बलिदान था, सेथंक समय प्रार्थना लेखा अच्छे ना। से समय कौन है प्रार्थना करने को लगिले। एबे आउ बलिदान नाई। सेथंक समय सत्य उपासक माने ठिया हेले। तहिरु आरंभ हेले इंट्रोडक्शन ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर। सत्य उपासक माने आजिर विश्वासी मान को मध्य सही कथा ही कहा जाए। जौन 4 अध्याय 20 पद लिखा जाए, जिसु कहले जो समय सत्य उपासक माने बाहरिबे, जे माने सत्य आत्मार उपासना करिवे, एमिति दिन आसुछि। तुम्हे माने आ समरिया रे प्रार्थना करिवो नाही, केबा जेरूशलेम रे प्रार्थना करिवो नाही, जे दिन सत्य उपासक माने पूरे पद कोन करिके आममान को पितृपुरुष माने एही पर्वत रे उपासना करिवे। आ आपण माने कहू अछंती जे तन रे उपासना करिबा उचित ताहा जेरूशलेम रे अछि। तापरे यीशु ताहां कहिरे आगनारी मो कथा विश्वास करो। जो समय तुहि माने एही पर्वत रे
କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛି। ଏଇପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଆଉ ଆଜି ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଛୁ ମାନେ ଆମର ଶେଷ ବିଷୟ ସେଠଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟ ଉପାସନାକାରୀ ବୋଲି ଠିଆ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ଥିଲା ସେଠଙ୍କର ବିଷୟ ସମାପ୍ତ।